Good morning, children. So today we will start animal tissue. Okay, we have completed our plant tissues. So from today we will start animal tissues, and in animal tissues today we will read epithelial tissue and muscular tissue. So animal tissue, I am just giving a summary of animal tissues to you. Okay, so animal tissues, there are of 4 types: epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue. So epithelial tissue, these are the different type of epithelial tissues: squamous epithelium, columnar epithelium, cuboidal epithelium and glandular epithelium. Same in muscular tissue, it is made up of muscle fibers. So 3 type of muscle fibers are there: striated muscle fiber, smooth muscle fiber and cardiac muscle fiber. Different type of connective tissue: fluid connective tissue, then skeletal tissue. You can see different types of skeletal tissue, bone and cartilage, then dense regular connective tissue, ligament and tendon, then areolar tissue and adipose tissue. And fourth one is nervous tissue. So these are the different type of animal tissues. Okay. So today we'll read about epithelial tissue, different type of epithelial tissues and muscular tissues. First is epithelial tissue. As in plants, we have read the outermost layer of the plant is epidermis. Okay, so same in animals, the covering or protective tissue is called epithelial tissue. Don't get confused. In plants it is epidermis and in animals it is called epithelial tissue. So this epithelial tissue forms the outer covering. ना outer covering बनाता है, like skin, outer covering of organs, lining of blood vessels, lungs, esophagus, etc. Because it makes the outer covering, तो main function is protection, है ना, सबसे बाहर present है, lining बना रहा है organs की, तो it protects the body and control the movement of materials between the body and the surrounding and between the parts of the body. तो body के different parts के बीच में, body में और surroundings के बीच में movement of materials में help करता है. The cells are closely arranged. Now epithelial tissue है तो obvious it is made up of different type of cells. तो cells कैसे arrange होंगी? Cells are closely arranged in the tissue, है ना, and have a fibrous basement membrane. एक basement membrane है जिसके ऊपर different cells arrange होती है. Now different types. Now from the point of view of exam, it is asked in the exam. क्या पूछते हैं exam में? Location क्या है ना? Question will come कि which tissue makes the lining of blood vessel or lung alveoli? Then you have to answer squamous epithelial tissue, है ना? Or which tissue forms the lining of mouth? Then the answer is same. Then which tissue is present in the esophagus or which tissue forms the lining of the esophagus? है ना? Basically this tissue forms the lining, है ना? Outer lining or inner lining of the organs. So squamous epithelial tissue consists of a layer of thin flat cells. Cells का structure कैसा है? Flat structure है ना? Flat होती हैं cells, thin होंगी और they are arranged on the basement membrane. Location, body में कहाँ present होती है squamous epithelial tissue? तो it is very very important. It is present in the lining of blood vessel. This you have to learn कि lining of blood vessels पे present होगी. Then lung alveoli, lining, this is common term. It is present in the lining of blood vessel. It is present in the lining of lung alveoli, present in the lining of mouth, present in the lining of esophagus. Now this is simple squamous epithelial tissue, है ना? Epithelial tissue एक single layer form करता है. Then it is called simple squamous epithelium. And simple squamous epithelial tissue कहाँ present होगा? Lining of blood vessel, lung alveoli, mouth and esophagus में. Now skin has several layer of epithelial cell. अगर epithelial tissue की single layer present है, then it is called simple squamous. If more than one layers are present, as for example in skin, this question is frequently asked in the exam कि which tissue is present in skin. So you will have to write stratified squamous epithelial tissue. Okay, you will not write simple squamous epithelium. Skin में epithelial cells different layers बनाते हैं. Okay, and such epithelium, जब epithelial tissue की cells
they are present in different layers, then it is called stratified squamous epithelial tissue. If a single layer of cell is present, then it is called simple squamous epithelium. If several layers are present, then it is called stratified squamous epithelial tissue, and skin is the example of stratified squamous epithelial tissue. What is the function of this tissue? Whether stratified squamous or simple squamous, answer is protection. Okay, तो लोकेशन है कहाँ प्रेजेंट होती है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड. लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लंग एल्वियोली, माउथ एंड एसोफेगस, है ना. स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, where it is present in skin. And what is the function of squamous epithelial tissue? The answer is protection. Now come to the second part or second type of epithelial tissue. It is columnar epithelial tissue. Squamous epithelial cells जो थी, टिश्यू की सेल्स थी, स्ट्रक्चर कैसी थी? दे आर थिन फ्लैट सेल्स. ओके. columnar epithelial tissue, it consists of tall column like cells, है ना. column like यानी कि लंबी लंबी, तो it consists of tall pillar like cells. Now again these cells are also arranged on the basement membrane. एक basement membrane होती है जिस पर ये tall pillar like या column like cells arrange होती है. okay. Now location, again important question, where these columnar epithelial tissue is present. So these are present in the walls of intestine and stomach. ओके. तो इंटेस्टाइन और स्टमक की वॉल में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू. फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. स्टमक में, इंटेस्टाइन में यहाँ क्या होता है? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का फंक्शन होता है. ओके. तो हेयर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट. कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, है ना. हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है पूरा, हमारा विंड पाइप है, देन उससे ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, यहाँ पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इट हैज़ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीलिया. छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सीलिया. नाउ दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू. बेसिकली कॉलमनर एपिथेलियम है, लेकिन अगर कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स पर क्या प्रेजेंट हो? हेयर लाइक projections present हो, then columnar epithelium is called ciliated columnar epithelium. And this ciliated columnar epithelium is present where? In the respiratory tract. This is the answer कि where ciliated columnar epithelial tissue is present, तो it is present in the respiratory tract. अब फंक्शन क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है तो क्या फंक्शन करेगा? दिस ciliated columnar epithelium का फंक्शन क्या है? The movement of cilia pushes the mucus forward to clear the tract. जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? म्यूकस को पुश करते हैं आगे की साइड, है ना, जिससे कि ट्रैक जो है, रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लियर हो जाता है. सो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, है ना, कहाँ प्रेजेंट है? स्टमक और इंटेस्टाइन की वॉल्स में, और फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन. लेकिन अगर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू पर ही की सेल्स में क्या प्रेजेंट होंगे? सीलिया अगर प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू. और कहाँ प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक में. ओके. नाउ कम टू द, वी कैन सी द डायग्राम ऑफ दीज टू. देखो, स्क्वेमस, अगर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है एपिथेलियल टिश्यू की, देन इट इज कॉल्ड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इस पर सिंगल लेयर है. लेकिन अगर मोर देन वन लेयर्स आर प्रेजेंट, बहुत सारी अगर लेयर्स प्रेजेंट हैं, तो इसे हम बोलेंगे क्या? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. तो दिस इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एंड दिस इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. ओके. देन कॉलमनर एंड सिलिएटेड. कॉलमनर, देखो, these are column like, tall pillar like cells. This blue color line, this show basement membrane. Basement membrane पर column like लंबी लंबी cells arrange है, and nucleus is also present in the cells. Okay. अब अगर यही columnar cells पर क्या present है? cilia. Look here. ये छोटे छोटे cilia present है ना? cilia present है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? ciliated epithelial tissue. ciliated columnar epithelial tissue. यहाँ भी column like cells है लंबी लंबी,
है ना, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, बट सीलिया आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द कॉलमनर सेल। तो कॉलमनर अगर एपिथेलियम पर सीलिया है तो इसे हम बोलेंगे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो दिस इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, दिस इज सिलिएटेड कॉलमनर। सिलिएटेड क्यों बोला? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सीलिया। नाउ नेक्स्ट टाइप, एपिथेलियल टिश्यू के टू टाइप्स वी हैव रेड, है ना, स्क्वेमस एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, और कॉलमनर में ही सिलिएटेड कॉलमनर। नाउ थर्ड वन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रक्चर क्या है, कैसी सेल्स होंगी? कॉलमनर में कॉलम लाइक सेल्स थी, टॉल थी, लंबी लंबी सेल्स थी। यहाँ क्या होगी? क्यूबॉइडल है तो क्यूब शेप सेल्स होती है, एंड दीज आर ऑल्सो अरेंज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। नाउ अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकेशन, वेयर दीज आर लोकेटेड? तो इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ kidney tubules and ducts of salivary glands. We can learn in a simple way. Cuboidal, है ना, when we speak the term, तो we give stress on the D, cuboidal, and here also kidney, ducts of salivary glands. Okay, तो where it is present? Cuboidal, kidney tubules and ducts of salivary glands, है ना, यहाँ प्रेजेंट होती है किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग एंड डक्ट्स ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स। फंक्शन, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंडुलर एज द नेम इंडिकेट्स ग्लैंड्स, तो इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द ग्लैंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स, है ना। तो सम टाइम एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड, कभी कभी एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इट फोल्ड्स इनवर्ड्स, अंदर की साइड फोल्ड हो जाता है, एंड फॉर्म अ मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स बना लेते हैं विच सिक्रीट, ग्लैंड्स का मेन फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन, तो इट सिक्रीट सब्सटेंसेस, देन दिस टिश्यू इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो फंक्शन ग्लैंड्स का क्या होता है? ऑलवेज सिक्रीशन, है ना। तो फंक्शन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू इज सिक्रीशन, और लोकेशन क्या होगी? इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ डिफरेंट ग्लैंड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट four type of epithelial tissue. First squamous epithelial tissue, then columnar epithelial tissue, columnar में ही हमने पढ़ा ciliated columnar epithelial, then cuboidal epithelial tissue and glandular. तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछते हैं? लोकेशन ऑलवेज की विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, तो आंसर इज cuboidal epithelial. ओके, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, although you have to read all. Okay, so next, this is the diagram of cuboidal, है ना, cube like cells है. This is the basement membrane, then cells they are having single nucleus connected with the connective tissue. Okay, cytoplasm is also present in the cell. This is glandular epithelium. देखो epithelial cells they fold inward, देखो अंदर की साइड fold हो गई, है ना, they forms the gland. तो दिस इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, है ना, एंड द फंक्शन इज सिक्रीशन. नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू वेयर इट इज प्रेजेंट? मसल्स, है ना. तो दिस टिश्यू हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. वी हैव रेड कि मूवमेंट ऑफ द बॉडी में हेल्प करती है बोन्स, लेकिन बोन्स अलोन दे कांट डू द मूवमेंट फंक्शन, है ना. अकेले बोन्स मूव नहीं कर सकती है, दे मूव विद द हेल्प ऑफ दिस मसल्स. Okay, so this tissue help in the movement of the body. It consists of elongated cells. देखो whenever we talk about tissue, तो it means कि tissue it is made up of cells, है ना. तो muscular tissue consists of elongated cells called muscle fibers. Muscle fibers की बनी होती है. Now it contain a protein called contractile protein. मसल्स फाइबर्स में एक प्रोटीन होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, है ना, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन मूवमेंट. तो मूवमेंट में कैसे हेल्प करेगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, तो इट हेल्प्स इन द मूवमेंट. मसल्स विच मूव अंडर आवर विल, वो मसल्स जिन पर हमारा कंट्रोल होता है, जो हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, दे आर कॉल्ड वॉलेंटरी मसल्स, है ना. जैसे मसल्स ऑफ लेग्स, आर्म्स, इफ वी वॉन्ट टू मूव, अगर हम चलना चाहेंगे देन ओनली वी कैन मूव, है ना. ये नहीं कि हम अपने आप ही चलना स्टार्ट कर देंगे, है ना. तो दे आर कॉल्ड वॉलेंटरी मसल्स विच मूव अंडर आर विल, जो हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग मूव करती है ना. एंड मसल्स विच डू नॉट मूव अंडर आर विल,
जो हमारे विल के अकॉर्डिंग मूव नहीं करती है ना, हमारी मर्जी से नहीं मूव करती, अपने आप वर्क करती है, दे आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री। जैसे कि हार्ट की मसल्स होती हैं, इट डू नॉट वर्क लाइक दिस कि इफ वी विश देन आर हार्ट बीट्स, है ना, हमारे आप विश के अकॉर्डिंग नहीं मूव करती हैं, तो दे आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। तो 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर्स वील रीड, है ना, वी विल डू कंपेरेटिव स्टडी, तो इट इज ईजियर टू लर्न। फर्स्ट इज स्ट्रिएटेड मसल फाइबर, सेकेंड इज अनस्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड को स्मूथ मसल फाइबर भी कहते हैं, एंड कार्डियक मसल फाइबर। तो जस्ट वील सी टाइप ऑफ मसल फाइबर्स। तो स्ट्रिएटेड या स्केलेटल मसल फाइबर्स, है ना, स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड क्यों बोला, दे आर हैविंग ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। इनमें क्या होते हैं, ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं मसल्स फाइबर्स में, इसलिए बोलते हैं स्ट्रिएटेड। एंड दीज मसल फाइबर्स आर लोकेटेड इन द स्केलेटन, हमारा स्केलेटन बनाती है हमारी बोन्स, तो बोन्स के साथ अटैच होती है, तो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल फाइबर, क्योंकि ये हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क करती है। ओके, सो नेक्स्ट इज स्मूथ और अनस्ट्रिएटेड, है ना। अब स्मूथ और अनस्ट्रिएटेड, वाई वी आर कॉलिंग इट स्मूथ और अनस्ट्रिएटेड, बिकॉज इन दीज मसल फाइबर्स ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड आर एब्सेंट। इनमें कोई ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स नहीं होते हैं, है ना। एंड कार्डियक मसल फाइबर, कार्डियक वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट, हार्ट के लिए यूज करते हैं हम वर्ड, तो दीज मसल फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट। ओके, स्मूथ स्ट्रिएटेड मसल फाइबर को हमने वॉलेंटरी भी कहा, बिकॉज दे मूव अकॉर्डिंग टू आवर विल, हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। स्मूथ मसल फाइबर्स को हम इनवॉलेंट्री भी बोलेंगे, बिकॉज दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते। एंड कार्डियक मसल फाइबर्स, दे ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री, बिकॉज दे ऑल्सो डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। जस्ट लुक अ डायग्राम ऑफ दीज मसल फाइबर्स। देखो, स्ट्रिएटेड, है ना, यहां देखो डार्क बैंड लाइट बैंड, यहां ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट स्ट्रिएटेड में, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल फाइबर। कार्डियक मसल फाइबर्स में भी लाइट कलर के ये ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, बट दीज स्ट्रिएशंस, है ना, लाइट और डार्क बैंड, दे आर एब्सेंट इन स्मूथ मसल, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स। ओके, नाउ स्ट्रक्चर। स्ट्रिएटेड सेल्स आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड। सेल्स कैसी हैं, लॉन्ग हैं, सिलेंड्रिकल हैं और अनब्रांच्ड हैं। देखो सेल कैसी है, स्ट्रिएटेड में लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल शेप है और अनब्रांच, कोई ब्रांचिंग यहां नहीं है। स्मूथ मसल फाइबर की सेल्स कैसी होती हैं, ये स्पिंडल शेप होती है ना, सिलेंड्रिकल नहीं है, स्पिंडल शेप है, पॉइंटेड फ्रॉम द वन एंड, एक एंड से पॉइंटेड होती हैं, ऐसी एंड इसको शेप को बोलते हैं टेपरिंग एंड्स, जो पॉइंटेड एंड होते हैं उनको बोलते हैं टेपरिंग एंड्स। और कार्डियक मसल कैसी हैं, दे आर ऑल्सो सिलेंड्रिकल, इन्हीं की तरह सिलेंड्रिकल भी है ना, बट दे आर ब्रांच, देखो ब्रांचिंग हो रही है ना। तो ये डिफरेंस हो गया कार्डियक में और स्ट्रिएटेड में, दोनों में स्ट्रिएशंस है, दोनों सिलेंड्रिकल है, लेकिन स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स अनब्रांच है और कार्डियक मसल्स कैसी है, ब्रांच होती है। नाउ अगर न्यूक्लियस की बात करें तो हेयर दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, एक से ज्यादा, है ना, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। स्मूथ मसल में सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यहाँ सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना। एंड कार्डियक मसल्स दे हैव सिंगल न्यूक्लियस। तो ये हो गया इनका स्ट्रक्चर, है ना। नाउ सी, तो स्ट्रिएटेड सेल्स आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड। स्मूथ मसल्स सेल्स आर स्पिंडल शेप एंड अनब्रांच्ड। एंड कार्डियक सिलेंड्रिकल है बट ब्रांच होती है। स्ट्रिएटेड मल्टी न्यूक्लिएट, यानी कि मोर देन 1 न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। स्मूथ मसल यूनी न्यूक्लिएट होती है, सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। एंड कार्डियक ऑल्सो यूनी न्यूक्लिएट। Striated, as the name indicate, alternate light and dark band, means striations are present. Smooth muscles में striations absent होते हैं, cardiac में भी striations present होंगे। Location, again important question, कहाँ present होती हैं, तो in our hands, legs,
स्मूथ मसल्स, वॉल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, आइरिस ऑफ आई, यूरेटर, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं. ओके, एंड कार्डियक प्रेजेंट इन हार्ट. वॉलेंट्री, स्ट्रेटेड मसल्स आर वॉलेंट्री. वॉलेंट्री क्या होती है? विच वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, जो हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क करेंगी, है ना. दे कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं. तो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो दे गेट टायर्ड, थक भी जाती हैं, एंड दे टेक रेस्ट भी लेते हैं. स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री है. देखो कहाँ प्रेजेंट है? वॉल ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, आइरिस ऑफ आई, है ना, यूरेटर. दीज ऑल आर इंटरनल ऑर्गन्स, है ना. तो दे आर इनवॉलेंट्री, नॉट अंडर आर कंट्रोल. इनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. दे कॉन्ट्रैक्ट कंपेरेटिवली स्लो एंड डू नॉट गेट टायर्ड, थकती नहीं है कभी भी. कार्डियक मसल, दे आर ऑल्सो इनवॉलेंटरी, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स थ्रू आउट द लाइफ, है ना. थ्रू आउट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है, एंड डू नॉट गेट टायर्ड. ये भी टायर्ड नहीं होती है, थकती नहीं है ना. ये थक जाएंगी तो क्या होगा? लाइफ एंड्स. ओके, नाउ स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल्स, फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट. देखो कहाँ प्रेजेंट है? लोकेशन, दे आर लोकेटेड इन हैंड्स एंड लेग्स, तो दे हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट. स्मूथ मसल्स का फंक्शन क्या होगा? दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल. कहाँ प्रेजेंट है? वॉल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन. तो फूड के मूवमेंट, एलिमेंट्री जो हमारी कैनल है उसमें फूड का मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उसमें हेल्प करती है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच मसल्स हेल्प इन द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. तो आंसर इज स्मूथ मसल्स और अनस्ट्रिएटेड मसल्स. ओके, बाकी यहाँ पर भी ये मूवमेंट में हेल्प करेंगी जो भी सब्सटेंसेस है उनके. नाउ कार्डियक मसल्स का फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन द पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू आउट हार्ट. थ्रू आउट हार्ट जो ब्लड है वो कैसे होगा? ब्लड का जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी के थ्रू होगा ब्लड का फ्लो, है ना. तो इट हेल्प्स इन द पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट. So this is the easy way comparative study you can do, okay, and you can look at the diagram also. It's quite easy. Here one more diagram we can see. देखो heart है तो here cardiac muscles are located, branch है, cylindrical है, uninucleate है, और arms में, hands में, legs में skeletal muscle also cylindrical. देखो striations भी दिख रहे हैं, and more than one nucleus is present. एंड हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन यहाँ यानी एलिमेंट्री कैनल में स्मूथ मसल्स होती हैं. और स्मूथ मसल्स कैसी हैं? स्पिंडल शेप होती हैं, कोई स्ट्रिएशन नहीं है, एंड सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. तो यू कैन ड्रॉ दीज डायग्राम्स ऑल्सो, यू हैव टू लेबलिंग ऑल्सो. एंड दिस इज स्मूथ मसल, है ना, टेपरिंग एंड देखो हेयर यू कैन सी स्पिंडल शेप, सिंगल न्यूक्लियस. स्केलेटल मसल्स हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिलेंड्रिकल हैं, स्ट्रिएशंस यू कैन सी. एंड कार्डियक मसल्स आर ऑल्सो सिलेंड्रिकल बट यूनिन्यूक्लिएट एंड ब्रांच. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, skeletal and cardiac. These are unbranched, these are branch. Okay, another diagram we can see, type of muscle fibers. You can draw these diagram in the exams, okay, with the labeling. So this is all for today. Thank you.